Hello, good morning, children. How are you? I hope you are fine at your home. So in this glimpse of India, we have completed two subunits. First was जो पैडर थी, पैडर फ्रॉम गोवा, बेकर जो थे. सेकंड वाज कुर्ग. कुर्ग के बारे में अपने पढ़ा कल. एक बहादुर जाति जो कि साउथ में प्लान कर गई मैसूर में. और मैसूर जो है वो किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी और रेन फॉरेस्ट. और वो जो आर्मी चीफ करिप्पा, फर्स्ट आर्मी चीफ है इंडियन आर्मी के, और उनकी पहचान कि कुर्ग जो है वो अरबी हैं या फिर अलेक्जेंडर ग्रीक से हैं, उनके बारे में बताया मैंने. और बर्ड्स, रिवर राफ्टिंग, काफ़ी रोमांचित ऐसी जर्नी जो वहाँ पे हो सकती हैं. और एक ऐसी चीज़ जिसमें बचना चाहिए, जैसे तो मानसून का सीज़न है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, है ना. और डेंजरस थिंग वाज ऑल्सो एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट से भी बचना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टी फ्रॉम आसाम. नंबर 3 है ये सब, लास्ट टॉपिक. इट इज अ टॉपिक दैट इज नेम्ड एज अ टी फ्रॉम आसाम. And here in this chapter, I am going to introduce about the characters which are talking to each other. Pranjal, a youngster from Assam, यानी एक लड़का Pranjal from Assam is Rajveer's classmate at a school in Delhi. जो किसका classmate है? राजवीर का. They are both the boys are studying in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. And what is the profession, or we can say what the father of Pranjal? He is a manager of a tea garden in Assam. And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. And Pranjal ने क्या किया? He had invited Rajveer to visit Assam. अब देखो, एक नॉर्थ इंडियन लड़का राजवीर, नाम से पता चलता है ना, मे बी ही बिलोंग टू राजस्थान, पंजाब, एनीथिंग एल्स, एंड ही इज गोइंग टू विजिट असम. तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो ज़मीन की जो मतलब उपजाऊपन, या कह सकते हैं कि वहाँ की फसल टोटली हमसे डिफरेंट है. हमारे यहाँ पे टी नहीं होती है ना, वहाँ पे बाजरा नहीं होता. सो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो द बॉय राजवीर वुड मूव देयर, एंड वो क्या देखेगा वहाँ पे? ही विल बी सरप्राइज टू सी एनीथिंग, एवरीथिंग. If Pranjal would visit in Rajasthan, what would he see? He would also be surprised. So these are the two different states, and they are very far from one each other. So the boy Rajveer is going to visit Pranjal's hometown. Okay. चाय गरम चाय, a vendor जो ट्रेन के अंदर होते हैं बेचने वाले, called out in a high pitched voice. A vendor was selling the chai. आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम करते हैं, हम पता है कि चाय वाले आते हैं. He came up to their window and asked चाय साहब where they were sitting. He came, the चाय वाला जो आया ना, चाय वाला आया, बोला सर चाय चाहिए. Give us 2 cups, Pranjal said. Give us 2 cups. They sipped the steaming hot liquid. Sip मतलब sip करना. Sip the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Not only they were taking tea, everyone was also taking tea in the compartment. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Rajveer बोला Pranjal को, do you know 80 crore cups are, we can say, taken throughout the world in a day. Wow, explained Pranjal. Tea really is a very popular. Pranjal ने कहा हाँ, वास्तव में टी बहुत पॉपुलर है. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. What the Pranjal was doing in that at the time, he was reading the detective book, novel. And buried his nose का मतलब होता है वो दोबारा पढ़ने लग गया. Rajveer too was an ardent fan of detective book stories. Rajveer also fond of to read the detective stories. But at that moment he was keener on looking at the beautiful scenery. लेकिन Assam was new for him, and the surrounding was also new for Rajveer.
So he was not taking any interest to read the book. He did not want to waste his time. अगर हम राजस्थान में यहाँ पे मूवमेंट करें, हमारे ही होम टाउन में, हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे वट एवर हैपनिंग सराउंडिंग अस. पता है ये जाटी का पेड़ है, ये नीम का है, ये बाजरा है, ये सरसों है, ये हम पता है, वी आर इन हैबिट. लेकिन इफ़ वी वुड मूव फ्रॉम दैट फ्रॉम आवर स्टेट, अगर हम दूसरे स्टेट में जाएंगे, इफ़ वी मूव फ्रॉम आवर स्टेट टू अदर स्टेट, then we will be very, we can say, excited to see the scenery outside. In that same way, Pranjal तो इस चीज से परिचित था, he was reading his book, but Rajveer was excited. It was green everywhere, greenery हर जगह पे. Rajveer had never seen so much greenery before, and before his life, Rajveer had never seen this type of greenery. Then the soft green paddy fields. Paddy field का मतलब होता है field where rice is grown, चावल के खेत. Soft green paddy fields gave way to tea bushes. और उसके पीछे थी क्या? टी के झाड़ियां, मतलब पेड़ जो होते हैं. It was a magnificent view. बहुत ही शानदार व्यू था. Against the backdrop of densely wood hill. और भी आगे क्या था? वुडन हिल्स, वुडेड हिल्स, पहाड़ियां थी. ए सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फॉर एज दे आई कुड सी. जितना अधिक वो देख सकता था, जितना दूर तक वो देख सकता था, हर जगह चाय के जो प्लांट होते हैं ना, वो लगे हुए थे. ड्राफ्टिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टेल स्टडी शेड ट्रीज एंड amidst the orderly rows of bushes busy moved doll like figures. यानी छोटे छोटे पेड़ जो हैं चाय के, टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी सेड्स, वो बड़े हो रहे हैं, ट्रीज, अमीज उनके बीच में द ऑर्डिनरी रो ऑफ बुशेस बिजीली मूव डोल लाइक फिगर्स, वो मूवमेंट कर रही हैं डोल की तरह. जब हम किसी चीज़ में ट्रेवल करते हैं, या बस में या ट्रेन में या जीप में, तो पेड़ जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट कर रहे हैं, बल्कि वो पेड़ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं. पेड़ या कुछ भी, वो हम मूवमेंट कर रहे हैं. तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो छोटे छोटे टी के जो पेड़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, बट दे वर नॉट मूविंग, द ट्रेन वाज मूविंग. इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ टॉल चिमनी. थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग थी, तो भद्दी सी, और वहां से चिमनी से स्मोक निकल रहा था. हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. अभी राजवीर बोला, हे लुक एट दैट, this is tea garden. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did share Rajveer's excitement. Didn't share, but you know, Pranjal was used to about this type of environment because he was born in this condition. So he did not take any interest in Rajveer's we can say excitement. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. कह रहा कि असम के अंदर सबसे ज्यादा चाय पैदा होती है वर्ल्ड में. कौन कह रहा है? ये राजवीर. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम. कह रहा है कि यू आर वेलकम टू सी हियर, लॉट ऑफ गार्डन्स आर देयर एंड दे विल नॉट गोइंग टू गेट एंड फॉर देयर लाइफ टाइम. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. मैं कह रहा कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैंने सब कुछ पढ़ा है इसके बारे में. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. अभी कह रहा है कि no one really knows, कौन जानता नहीं है कोई कि टी को किसने डिस्कवर किया, लेकिन काफी स्टोरीज हैं इसके बारे में. What legends? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. कह रहा है कि एक चाइनीज एम्परर है और वो क्या करता था? He always boiled water before drinking it. पानी को पीने से पहले उसको बॉइल करता था वो. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it. तभी क्या हुआ? उसकी ट्विग्स की दो लीव्स, जो चाय की जो लीव्स है, वो गिर गई उसके अंदर, अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंटली गिर गई. And that make a delicious flavor, और उससे अच्छा फ्लेवर आया. It is said they were tea leaves. ऐसा कहा जाता है कि वो जो लीव्स पड़ी थी वो क्या थी? टी लीव्स. कह रहे हैं कि एक स्टोरी तो ये है कि एम्परर ऑफ चाइना
वो ही यूज टू बॉइल द वाटर बिफोर ड्रिंक, बट वन डे क्या हुआ, उसके अंदर दो पत्तियां गिर गई, एंड दीज वर द लीव्स ऑफ द टी, एंड इट मेक्स डिलीशियस फ्लेवर ऑफ वाटर। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रेंजल। प्रेंजल बोला दूसरा बताओ मुझे। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू ऑल्सो, हमारे पास इंडियन लीजेंड्स भी हैं, मतलब स्टोरीज हैं, महान गाथाएं। बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो होता है ना वो। एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेस्टिक, जो साधु थे बुद्धिस्ट, कट ऑफ हिज आई लिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। कहते हैं कि एंशियंट बुद्धिस्ट था कोई, उसने अपनी आंखें की जो लीड ये होता है ना बोएं, ये काट दी उसने। क्यों? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। व्हेन ही वाज डूइंग हिज मेडिटेशंस, वो जब वो ध्यान लगा रहा था तो उसको नींद आ रही थी, इसीलिए उसने अपनी आईलिड्स काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और कहते हैं कि उन्हीं आईलिड्स से 10 चाय के प्लांट्स उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप। कहते हैं कि वही जो लीव्स हैं प्लांट्स की, जब उनको गर्म पानी में बॉइल किया गया, उसको जब पिया गया, तो कहते हैं कि नींद गायब हो जाती है। दीज आर द टू स्टोरीज। फर्स्ट वन वाज अबाउट द एम्परर। ही यूज्ड टू बॉइल द वाटर, सो accidentally 2 leaves fell on in that water and the water becomes delicious. Second one, जो बुद्ध लोग होते हैं, बुद्धिस्ट, they were doing their meditations, but one day the Buddhist felt uneasy, or we can say he felt sleepy, then he cut his eyelids and the eyelids जो थी वो ग्राउंड पे गिर गई, और वहां से 10 जो है चाय के क्या निकले, पौधे निकले। और कहते हैं कि वो चाय वाले जो पत्तियों से जब वो पानी में मिला के उसको गर्म किया गया, तो कहते हैं कि नींद को खत्म कर दिया उन्होंने। ये है 2 लीजेंड्स कह सकते हैं अपन। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने कहा चाय सबसे पहले कहां पी गई थी? चाइना में। एज फॉर बैक एज 2700 BC, in fact words such tea, chai and चीनी are from Chinese। कहता है कि जो वर्ड है ना चाय और चीनी, they are from China। कहाँ से है ये? चाइना से। टी came to Europe only in the 16th century। कहता है कि यूरोप के अंदर टी कब गई? 16th century में आई। and was drunk more as a medicine than as a beverage। और ये इसे मेडिसिन की तरह लिया गया, ना कि किसी इंजॉय के लिए। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। कौन सा जंक्शन आ गया? मेरियानी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। बॉयज वहां उतर गए, बोथ द बॉयज, हु, राजवीर एंड प्रेंजल, एंड दे स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। Pranjal's parents were waiting for them. Who was waiting for them? Pranjal's parents। जो प्रेंजल था, प्रेंजल जो बोलते हैं उसके पेरेंट्स। Soon they were driving towards देहनु के बिहारी। ये नाम भी ऐसे अटपटे हैं, देखो। They were driving towards देहनु के बिहारी, देखिया बारी, the tea garden managed by Pranjal's father। और ये वो गार्डन था जो जिसके मैनेजर कौन थे? Pranjal's father। And who was waiting for them in the railway station? His parents। What we have discussed, they were talking about the tea, छोटे छोटे plants, tea के ट्रेन जब मूव करती है, then the boy was watching them। After that they came in the conclusion कि ये जो टी कैसे इसकी मतलब कैसे ये हुई, और कहते हैं कि असम जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्लांटेशन स्टेट है और प्रोड्यूस करता है वो। और फिर 2 स्टोरीज बताई गई है, तो वो चाइनीज एम्परर और बुद्धिस्ट वाली। अब क्या कर रहे, दोनों बच्चे नीचे उतर गए ट्रेन से, और उसके पेरेंट्स ने उनको रिसीव किया। एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद कार ने मेन रोड छोड़ दी, ऑफ आउट ऑफ लेफ्ट। दे क्रॉस ए कैटल ब्रिज। उन्होंने कैटल ब्रिज क्रॉस किया। एंड एंटर्ड देखियाबरी टी स्टेट। और कौन से स्टेट में चले गए? टी स्टेट, जो देखियाबरी टी स्टेट जो किसके द्वारा कंट्रोल था? प्रेंजल्स फादर।
ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, टूटी फूटी जो रोड थी अनइवन, उसके दोनों तरफ वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, एकड़ की संख्या में टी के छोटे छोटे बुशेज लगी हुई थी। ऑल नीटली प्रोन टू द सेम हाइट, सभी की सेम हाइट। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स ऑल्सो यू कैन सी देयर, व्हाट ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय तोड़ने वाले, विथ बैम्बो बास्केट ऑन देयर बैक, पीछे एक बास्केट, आपने टीवी में देखा होगा, पीछे लगा देते हैं तो पत्तियां हैं वो उसमें डाल देते हैं। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, कपड़े जो ऊपर के अपने आप को कवर करने वाले, ताकि वो खराब नहीं हो जाए, यानी स्किन को प्रॉब्लम नहीं हो या फिर टी खराब नहीं हो। वर्ड प्लकिंग द न्यूली स्प्रॉटेड लीव्स, नई नई जो कॉम्प्ले है ना चाय की, वो तोड़ रहे हैं वो टी प्लकर्स। गॉट इट? What they were doing? They were doing the thing that they were plucking the leaves from the tea garden. Got it? And these were doing by, we can say, by the tea pluckers. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea to pass. Suddenly, a tea tractor that was completely loaded with tea came in front of them. Pranjal's father stopped his car and allowed him to move first. This is the second flush of spotting period, isn't it, Mr. Barua? Rajiv asked. कह रहा है कि ये सेकंड फ्लश ऑफ स्पॉटिंग पीरियड, स्पॉटिंग पीरियड का सेकंड टाइम है ये, यानी दोबारा ही उगी हुई है। मिस्टर बरुआ, बरुआ मतलब फादर्स नेम, प्रंजल के फादर का नाम था। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड येल द बेस्ट टी, और कब तक? मई से जुलाई का बेस्ट है, उसके बाद में सबसे बेस्ट टी निकलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। द बॉय वॉज एब्सोल्युटली राइट, राजवीर था वो एकदम सही था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गहन स्टडी की थी टी गार्डन में आने से पहले, पढ़ा था इसके बारे में। देन हिज फादर सेड यू सीम टू डन अ लॉट ऑफ होमवर्क बिफोर यू कमिंग, आप यहाँ आए उससे पहले आपने अच्छा होमवर्क किया, मतलब अच्छी स्टडी की है टी के बारे में। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। राजवीर कह रहा है यस मिस्टर बरुआ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और मैं और भी जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो मोर एंड मोर फ्रॉम यू एज आई हैव केम देयर। So dear children, we have completed 3 subunits. That was also T. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, no question is there in this last chapter. But you know what you have to do? You make the study. आप study करो इसकी, and you make a little note that summary of the chapter. मैं ये क्वेश्चन दूंगा, write the summary of the chapter, the टी फ्रॉम आसाम। इसमें एक चैप्टर दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा एंड यू शुड राइट द आंसर्स। गॉट इट? एंड इन द फर्स्ट क्वेश्चन जो था कुर्ग वाला, ये देखो कुर्ग, वेयर इज कुर्ग, कहाँ है कुर्ग? सबसे पहले मैसूर के अंदर जो है ना जगह, तो बताया था मैंने तुम लोगों को, यानी मैसूर का जो कोस्टल एरिया है। दीज आर द क्वेश्चंस। What is the story about the Kudos people's descent? Kudos people descent के बारे में क्या स्टोरीज है? There are 2 persons. First is Greek, second one is अरबी। अब वो ग्रीक कैसे कहलाए? In the army of Alexander, जब अलेक्जेंडर की आर्मी थी, जब वो वापस लौट रहे थे, some of them moved towards south side and they settled there and they married with a local, okay, and they were living their life there forever and they did not move with Alexander. और क्योंकि and they also known as a great Martian, मार्शल आर्ट के अंदर परिपक्व थे वो, and this we can say these Kurg are known as a brave, what it, brave people. और इनका जो रहन सहन रीति रिवाज जो था इनका, they are also little bit different from our tradition from Hindus. That is why we can say they are the origin from Greek. But second is that their जो उनका जो पहनावा है, their appearance or we can say their clothes were just like the Arabic people. आप देखना अरबी people, आप मूवीज में देखते हो
कि वो क्या करते हैं, कंप्लीटली एक चोगा सा पहनते हैं नीचे तक, और ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, एक कंबल सा, पता नहीं क्या वो रस्से वगैरह डालते हैं, इस तरीके से कुछ होता है, वो डाल लेते हैं। वो कुर्द लोग भी सेम कपड़े पहनते हैं। तो कोई कहता है कि वो अरबी हैं, कोई कहता है वो क्या है, ग्रीक है। समझ रहे हो? व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स यू नो अबाउट? पहली बात, द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों में हम क्या जानते हैं? कुर्ग आर नोन एज ए ब्रेव, वी कैन से रेस, एंड दे ओरिजिन देयर इज इन कर्नाटका, जो मैसूर के पास कोस्टल एरिया जो है, दैट इज अ ग्रेट रेन फॉरेस्ट देयर। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, उनकी फसल कॉफी। द स्पोर्ट्स इट ऑफर टू टूरिस्ट, काफी चीजें हैं स्पोर्ट्स में, रिवर राफ्टिंग है, रैपलिंग है, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन वी कैन से बाइकिंग है। दीज आर द स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग पीपल, वी कैन से टूरिस्ट को ऑफर किए गए हैं। द एनिमल यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, एनिमल्स, लंगूर देख सकते हैं अपन, एलिफेंट्स देख सकते हैं अपन, यस और नो? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, बैंगलोर से इसका डिस्टेंस कैसे जाता है, देखो जाना कैसे है, हाउ टू रीच। मेडाक्री, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग। मेडिकार एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां से अपन कुर्ग जा सकते हैं। द मिस्टी हिल्स, लस फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशन विल कास्ट ए स्पेल ऑन यू। देखो, बाय एयर द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर 135 kilometer and Bangalore 260 kilometer. There are 5 flights to Bangalore from Mumbai, Bangalore, Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai and Pune. Yes or no? चिड़ाव से कोई फ्लाइट नहीं है वहाँ के लिए। By rail, the nearest railroad are the Mysore, Bangalore and Hassan. By road, there are 2 routes to Kurg from Bangalore. यानी ये रोड वे है, इस तरीके से एयर भी है और ट्रेन के हिसाब से भी अपन जा सकते हैं। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया, एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, यू वुड आंसर देम एंड यू वुड शो मी द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, गुड बाय।